हाथों में बहुत सी चुड़ियां और बहुत सी चूड़ियां थी। उसने एक एक को चुड़ियां और एक एक को चूड़ा दे दी और कहा, जाओ इन चूड़ियों को ज़िबा करके आओ। लेकिन अल्लाह ने अपने जिन खास बंदों को हिदायत की जिम्मेदारी दी है वो सब नबी कहलाते हैं। उनकी तादाद 1,24,000 है, उनमें से 300 रसूल हैं। एक मौका ऐसा भी आ गया کہ دشمنوں دین مٹانے کی ٹھال لی۔ امام اس وقت مدینے میں تھے۔ امام نے جیسے ہی حالت دیکھی ایک سچے امام کی حیثیت سے یہ فیصلہ کر لیا، روز اللہ کی وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں بلکہ اللہ کی قربت اور اس کی اطاعت کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ کوئی کام نہیں بلکہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب مرض سے دوا نہ تھی، تکلیفیں تھی اور آرام کا انتظام نہ تھا، مشکلیں تھی اور ان کا مدرسے درس قرآن شاستری پاک میں پڑھتی ہوں۔ میں آپ سبھی کے سامنے ایک سبق پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اسکول میں بہت سے لڑکے پڑھتے تھے مگر استاد ایک لڑکے کو زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دن تمام لڑکوں نے مل کر استاد سے شکایت کی کہ ہم سب آپ سے پڑھتے ہیں لیکن آپ علی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ وہ تم سے زیادہ محنتی، تیز اور سمجھدار ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، تم ویسے نہیں ہو۔ سبھی لڑکے چپ ہو گئے لیکن انہوں نے دل سے بات نہیں مانی۔ استاد سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں تمہارا ٹیسٹ کر لوں۔ لڑکوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات۔ استاد نے اعلان کر دیا کل ٹیسٹ ہوگا۔ سبھی لڑکے تیار ہو کر آ گئے۔ استاد کے ہاتھوں میں بہت سی چڑیاں اور بہت سی چوڑیاں تھی۔ اس نے ایک ایک کو چڑیاں اور ایک ایک کو چوڑا دے دی اور کہا، جاؤ ان چوڑیوں کو ذبح کر کے آؤ، لیکن خیال ہے ذبح ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سبھی لڑکے چڑیوں کو لے کر چلے گئے اور تھوڑی دیر میں آ گئے مگر علی ذبح کر کے نہیں لائے۔ سبھی لڑکے دیکھ کر ہنسنے لگے کہ استاد اسے اتنا چاہتے تھے، اس نے استاد کی بات پر عمل نہیں کیا۔ استاد نے ایک ایک کو بلایا اور پوچھا، تم نے اسے کہاں ذبح کیا؟ کسی نے بتایا ٹوائلٹ، کسی نے بتایا گھسخانے، کسی نے بتایا اسٹور، ہر ایک نے کسی نہ کسی جگہ کا نام لیا۔ اس کے بعد استاد نے علی کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس سے ذبح کیوں نہیں کیا؟ علی نے کہا، میں ان تمام جگہوں پہ گیا لیکن ہر جگہ ایک دیکھنے والا موجود تھا۔ استاد نے کہا، وہ دیکھنے والا کون تھا؟ علی نے کہا، میرا خدا۔ استاد نے کہا، دیکھا بچوں، تم نے علی کو خدا پر اتنا ایمان ہے، ایسا انسان کبھی چوری چھپے کسی کی برائی نہیں کر سکتا، تم بھی علی جیسے بن جاؤ۔ جب کسی برائی کا خیال ہے تو یہ سوچ لینا وہ دیکھ رہا ہے۔ بعد ایک ایسا دن آیا جب تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسی دن کو قیامت جماعت کہا جاتا ہے۔ اس دن صحیح عقیدہ اچھے کام والوں کو ثواب، غلط عقیدہ برے کام والوں کو عذاب۔ کب فیصلہ ہوگا؟ اچھے کام والوں کو جنت ملے گی، برے کام والوں کو جہنم۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کے آرام اور تمام نعمتیں موجود ہیں اور وہی کسی کا دکھ درد نہیں۔ جن کا عقیدہ درست عمل اچھے ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کے عذاب اور ہر طرح کی تکلیفیں ہوں گی۔ روزت کا کھانا پینا بچھونا ہر چیزیں آگ کی ہوں گی۔ یہاں ہمیشہ برے کام کرنے والے ہی رہیں گے۔ آپ سبھی کو السلام علیکم۔ میں مدرسے درس قرآن شاستری پاک کی طالبہ ہوں۔ میرا نام بطول ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سبق پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے آخری نبی۔ اللہ نے اپنے جن خاص بندوں کو ہدایت کی ذمہ داری دی ہے وہ سب نبی کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 1,24,000 ہے، ان میں سے 300 رسول ہیں۔ 300 رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں۔ ہر اولو العزم کو خدا نے شریعت دی۔ رسول نبی سے بہتر ہوتا ہے، نبی پیغمبر اولو العزم سے بہتر ہوتا ہے اور ان سب سے بہتر ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ اللہ نے ہمارے رسول کو قرآن جیسی بے مثل اور عظیم کتاب دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اسلام جیسا دین دیا جس میں دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ اسلام جیسا معصوم عزیز و رشتہ دار دیے جو اہل بیت کہلاتے ہیں، جو ہمارے رسول کے علاوہ تمام عمر میں افضل ہے۔ صلوات امام کے اوصاف۔ نبی کے بعد لوگ ہدایت کرنے والے اور دنوں کو بچانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ امام کا کام یہ ہے کہ دین کی ہر بات کو اس کی اصلی شکل میں واقع رکھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانے اور کامیابی اور نجات تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہے۔ امام کا معصوم ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نبی کے لیے، کیونکہ امام کو بھی نبی کی طرح ہدایت کرنی ہے۔ اگر وہ خود غلطی کریں گے تو دوسروں کی ہدایت کیسے کریں گے؟ امام بھی
नबी की तरह पंजतन के हर बात के आलिम होते हैं। वो हमेशा से हलाल और हराम के पाबंद होते हैं। इमाम 12 हैं, उन्हें अल्लाह ने हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और जानशीन बनाया है, जो दीन के मुहाफिज मुकर्रर किए गए। चूंकि हमारे नबी सारे पैगंबरों से अफजल हैं और हमारे 12 इमाम उनके खलीफा और जानशीन हैं, लिहाजा हमारे 12 इमाम भी सारे नबियों की तरह सारे पैगंबरों से अफजल हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। मैं आपके सामने एक सबक पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है साइंस। इस दुनिया में एक ऐसा भी जमाना गुजरा है जब मर्द से दवा ना थी, तकलीफें थी और आराम का इंतजाम ना था, मुश्किलें थी और उनका कोई हल ना था। घोड़े गधे की सवारी थी, हाथ का पंखा था, सर्दी के लिए आग थी, रोशनी के लिए शमा और लालटेन थी। एक दूसरे तक दूर की आवाज पहुंचाने का कोई जरिया ना था। लोग बात करते थे और बात हवा में उड़ जाती थी। घर जरूरतें होती थी और उनका कोई इलाज ना होता था। आईने में तस्वीर दिखाई देती थी, आईने से हटते ही मिट जाती थी। और आज का जमाना ऐसा है जब चलने के लिए मोटर और रेल है, उड़ने के लिए हवाई जहाज और रॉकेट है, गर्मी के लिए बिजली का पंखा, कूलर और एसी है, सर्दी के लिए ब्लोअर और हीटर है, रोशनी के लिए ट्यूब और बल्ब है, आवाज पहुंचाने के लिए रेडियो और लाउड स्पीकर है, बात महफूज करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर है, तस्वीरों को बाकी रखने के लिए कैमरा है, बात करने के लिए टेलीफोन है, जमीन से समंदर की तह और आसमान तक जाने के लिए तरह तरह के जराए मौजूद हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये भी सोचा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया? याद रखो, ये सब साइंस के करिश्मे हैं। इंसान ने पूरी दुनिया को छान डाला है, पानी का दिल और पत्थर का सीना चाक करके बिजली की ताकत निकाल ली है। साइंस ने आदमी को बहुत आराम पहुंचाया है और इससे दुनिया को बहुत आराम पहुंचा है। लेकिन ये बात भी समझने की है कि साइंस वालों ने चीजों की कुव्वत निकाली है, कुव्वत पैदा नहीं की। कुव्वतों को पैदा करने वाला कोई और है और वह खुदा। खुदा ने दुनिया न बनाई होती, इनमें ये ताकतें ना पैदा की होती, इंसान को दिमाग ना दिया होता, दिमाग के लिए हालात साजगार ना किए होते, तो आज ये सब कुछ कैसे होता? इससे मालूम हुआ कि दुनिया की तरक्की परवरदिगार की देन है, जिसके लिए हमें उसका शुक्र अदा करना जरूरी है। हम भी अल्लाह के उन बेशुमार नेमतों से फायदा उठाते हैं। हमारा भी फर्ज है कि हम उन नेमतों का शुक्रिया अदा करें और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करें। मैं मदरसे दरसे कुरान शास्त्री पार्क में पढ़ता हूँ। आज सोसाइटी तंजीबुल मकाती। मैं आपके सामने एक सबक पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है वो रोजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा अल्लाह की वो इबादत है जिसमें रियाकारी और दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत और इसकी ताअत के अलावा कोई इरादा नहीं होता। क्योंकि रोजा कोई काम नहीं बल्कि बास कामों को तर्क करने का एक नाम है। रोजा शैतान की कमर तोड़ देता है। रोजा जहन्नम के अजाब से बचाए। माह रमजान का चांद देखने के बाद हर मुसलमान मर्द औरत बालिग पर एक दिन से रोजा वाजिब हो जाता है, यानी उन पर खाना पीना और ऐसे काम करना हराम हो जाता है जिनसे रोजा टूट जाए। रोजा तुल्लो फजर से शुरू होकर मगरिब तक रहता है। जानबूझकर रोजा न रखने वाले को बाद में कज़ा भी करनी होगी और एक एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने पड़ेंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा। नाबालिग 9 साल की बच्ची और 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोजा वाजिब नहीं है, लेकिन उनके लिए रोजा रखने में फायदा है और उनके माँ बाप के लिए सवाब। बीमार मुसाफिर रोजा नहीं रख सकते, लेकिन बाद में कज़ा करनी होगी। बेशर्ती की बीमारी दूर हो गई हो। रोजे में 3 चीज से बचना जरूरी है, उनसे सिर्फ अल्लाह की कुर्बत और इसकी ताअत से बचना चाहिए, और यही रोजे की नियत और यही कुर्बतन लिल्लाह का मतलब है। सलाम अलैकुम। मेरा नाम फराज हैदर है, मदरसा दरस कुरान का तालिबे इल्म। मैं आपके सामने एक सबक पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर आपकी इजाजत हो शुरू करूँ। 3 शाबान 4 हिजरी शायद 10 मुहर्रम 16 हिजरी मकाम विलादत मदीना मुनव्वरा मज़ार अक़दस करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे पाक नबी के नवासे हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई भी थे। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरह जन्नत के सरदार और मुसलमानों के अमीर हैं। आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे से बेहद मोहब्बत करते हैं और अल्लाह भी इन दोनों नवासे से बेहद मोहब्बत करता है। इनकी मोहब्बत ही ईमान कहलाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आ गया कि दुश्मनों दीन मिटाने की ठान ली। इमाम इस वक्त मदीने में थे। इमाम ने जैसे ही हालत देखी, एक सच्चे इमाम की हैसियत से ये फैसला कर लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने इस्लाम को नहीं मरने दूंगा, मैं मिट जाऊंगा लेकिन अपने अल्लाह का नाम नहीं मिटने दूंगा। के सामने एक सबक पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आपकी इजाजत तो शुरू करूँ। विलादत 20 जमादुस्सानी, वफात 3 जमादुस्सानी। मकाम विलादत मक्का मुकर्रमा, मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी। वालिद का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालिदा का नाम जनाब खतीजा।
इस्लाम की शहजादी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बैसत के 5वें साल यानी हिजरी सनत शुरू होने से 8 साल पहले 20 मादी उस्सानी को पैदा हुई। इसी साल खाने काबा की दोबारा तामीर हुई। 7 बैसत को अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चाहने वाले और कुछ खास हमदर्दों के साथ उन्हें शैब अबी तालिब में कैद कर लिया गया। आपकी बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी आपके साथ कैद सख्त के जुल्म झेलती थी। 9 बैसत को रिहा होने के चंद हफ्तों बाद आपकी वालिदा हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ना ले जा सके, बल्कि फातिमा बिन्ते असद और दूसरी बीवियों को हजरत अली के हमरा मक्के से मदीने आए तो आपकी बेटी ने आपसे मुलाकात की। अल्लाह के हुक्म से आपने अपने चचाजाद भाई के साथ अपनी अकौती और लौती बेटी की शादी हजरत अली अलैहिस्सलाम से करवा दी। जो यहाँ पर अभी खासतौर से 15 रमजान की शब में यहाँ पे महफिल हुई थी और उसमें हमारे बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं सकती है, लिहाजा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसमें भी इस काम में कोई इतना आसानी नहीं है कि खाली एक कह दिया और जो एकदम जुड़ने लगे लोग और हो गए। इसमें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, इसमें सुबह शाम एक कड़ी पड़ती है, रात भर जागना पड़ता है, मुसलसल ना चाहते हुए भी सफर पर रहना पड़ता है, तब जाके ये चीजें हाथ में आती हैं। इनसे बड़ा हौसला मिला है। सच्चा सिपाही और मुंतजिर बनाने के लिए भी बेहतरीन महीना है कि हम अगर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, तभी हम मुंतजिर वाकई भी बन सकते हैं। और इमाम की मारिफत, रसूल की हदीस है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर इस दुनिया से चला जाए वो एक गैर मुसलमान की मौत है उसकी। लिहाजा हम सब पर वाजिब है कि हमें अपने वक्त के इमाम से की मारिफत हासिल करें। और मारिफत का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ हमने रट लिया उनका नाम क्या था, उनके वालिद कौन थे, उनकी माँ कौन थी, वो किस तारीख़ में पैदा हुए, बल्कि नहीं, उन पे एतक़ाद कामिल और रासिख और उनकी बताई हुई बातों पर अमल, ये मारिफत होती है।